Hello everyone, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your SST teacher from California Public School. Yes, dear students, today's date is 6 July 2020 and we are doing the 5th class 6th chapter, the Constitution of India. In the previous video, we have to discuss about Constitution, need for the Constitution, framing of the Indian Constitution, nature and the preamble. So, today's video we have to discuss about the guiding principles, fundamental rights and fundamental duties. So, firstly we have to discuss about the guiding principles. As you know that the constitution lists some guidelines for the government to ensure the welfare of the people. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं गवर्नमेंट को ताकि वो लोगों की वेलफेयर मतलब उनके अच्छाई के लिए काम कर सके. These guidelines or guiding principles are called directive principles of the state policy. और अब उन गाइडलाइंस को और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. सो द गवर्नमेंट कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. कहते इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जब वो कोई भी देश के लिए कानून बनाते हैं. कैसे? पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, लोगों के पास प्रॉपर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए. एवरी चाइल्ड गोज टू अ स्कूल, हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए. एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट व्हेन ही और शी इज अ सिक. कहते हर एक पर्सन की अच्छे से ट्रीटमेंट होनी चाहिए जब भी वो बीमार हो. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. हमारे कुछ राइट्स हैं, अधिकार हैं. Our constitution gives every citizen some basic rights. कहते कुछ हमें बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बेसिक जो सभी के लिए हैं. These rights we have to call the fundamental rights. And these rights are for the किस चीज़ के लिए? Well-being of the citizens के लिए. कितने हैं हमारे? 6 main fundamental rights. First one is the right to equality. All one have equal. Equality, equal. The right to equality means that all citizens are equal before the law. Law के सामने सभी equal हैं. All citizens irrespective of their religion, caste, race, sex, place of the birth are equal. कहते सभी equal है. No discrimination, किसी में कोई भेदभाव नहीं है. Right to freedom. हमारे पास आज़ादी है. The right to freedom allows the citizen speak freely. अपनी आवाज़ किसी लगता है कि वो ये चीज़ गलत है, we can speak up. हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं. Choose any occupation. हम कोई भी occupation choose कर सकते हैं, whatever we want. Reside and travel anywhere within the country. अपने country में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं. It also provides for free and compulsory education for the children between 6 and 14 years of the age. कहते ये सभी के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है जो बच्चे 6 ईयर्स के लेकर 14 ईयर्स तक है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हो जाओ. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट. बेनिफिट के लिए उसके साथ बुरा व्यवहार करना, दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन. The right against exploitation ensures that poor people are not made to work without pay. कि जो poor people हैं वो बिना पैसे के काम नहीं कर सकते, हम उनसे नहीं करवा सकते. अगर हमने उससे काम करवाना है we have to pay it, हमें उन्हें पे करना होगा. This right also does not allow children below 14 years of the age to be employed. 14 years से जिन बच्चों की एज कम है वो काम नहीं कर सकते. That is also come in the right against exploitation. Next one is right to freedom of religion. हम कोई भी religion choose कर सकते हैं. The right to freedom of religion means that all people are free to follow any religion. कोई भी लोग कोई भी religion को follow कर सकते हैं. Cultural and educational right. Group of people who are less in number are called minorities. कहते जिनकी people कम है उनको minorities कहते हैं. This right protects
द मिनोरिटीज़ को ये राइट प्रोटेक्ट करता है. इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर. वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं. राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Right to the constitutional remedies allow every citizen to move court if any fundamental rights are denied to her or him. कहते अगर उन्हें कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलता, आपको लग रहा है कि ये हमारा राइट है, हमें नहीं मिल रहा, तो आप कोर्ट में जा सकते हो. नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. जैसे हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट ऑल सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड्स द कंट्री. कहते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी एक्सपेक्ट करता है कि हर एक सिटीजन कुछ अपनी ड्यूटीज निभाए अपने कंट्री के लिए. कौन सी हमारी ड्यूटीज है? वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना चाहिए. वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करनी चाहिए. वी मस्ट प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. जो हमारी पुरानी हेरिटेज है उसका ध्यान रखना चाहिए और उसे संभाल कर रखना चाहिए. पेरेंट्स और गाइडेंस मस्ट बी सेंड देयर वार्ड्स और चिल्ड्रन टू द स्कूल्स. और उन्हें बच्चों को हमेशा स्कूल भेजना चाहिए. सो दीज आर द सम ड्यूटीज दैट वी हैव टू ट्रिब्यूट टू अवर कंट्री. So in this video what we have to discuss? Guidelines, or we can say the directive principles of the state policy, fundamental rights, 6 fundamental rights, and some other fundamental duties. Hope all of you have listened it carefully. Take care. Bye bye.